السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے سب۔ تو ہم 9th کلاس کی میتھ کر رہے ہیں جی۔ تیسرا چیپٹر ہم نے شروع کیا، تیسرے چیپٹر کی پہلی مشق 3.1۔ تو یہ جو میرے پیچھے سوال لکھا ہوا ہے 3.1 مشق کا سوال نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اور اس میں اوپر سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ درج ذیل کو ترکیب سیٹ ساز میں لکھیں۔ یعنی یہ میرے پیچھے جتنے بھی سیٹ لکھے ہوئے اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ، تو ان سب کو ہم نے کس شکل میں لکھنا ہے؟ ترکیب سیٹ ساز کی شکل میں لکھنا ہے۔ تو ترکیب سیٹ ساز کیا ہے اور اس میں سیٹ کو کیسے لکھا جاتا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے۔ اس کے اوپر ہیڈنگ دی ہوگی ترکیب سیٹ ساز یا سیٹ کو لکھنے کے طریقے، وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی پریفر کروں گا کہ آپ سوال نمبر 2 کی ویڈیو کو پہلے دیکھیں اور سوال نمبر 1 کی ویڈیو کو بعد میں دیکھیں۔ وہ دونوں ویڈیو کلاس بنا کے میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، تو اگر وہ ویڈیو دیکھ لیتے آپ صحیح طریقے سے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ترکیب سیٹ ساز میں کسی سیٹ کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو وہ ویڈیو دیکھیں اور پھر آئیں اور چلتے ہیں انشاءاللہ اپنے سوالوں کی طرف۔ تو دیکھیں گے، یہ ہے سوال نمبر 1 کی پہلی جز، اور یہ جو طریقہ لکھا ہوا ہے یہ ہے اندراجی طریقہ۔ اندراجی طریقے میں اسی طریقے سے بریکٹ ہوتی ہے، اور بریکٹ کے اندر ہر ایک رکن کو کامے کی مدد سے علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک سیٹ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ کہ سیٹ کے اندر کون سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور کیا کیا پیٹرن دیا گیا۔ یہ درمیان میں نے کچھ خالی جگہ رفع من کے لیے چھوڑ دی تاکہ ادھر آپ کو سمجھاتا جاؤں گا اور ادھر لکھتا جاؤں گا۔ تو اس کا ایک پیٹرن ہے، خاص پیٹرن ہے، خاص ترتیب ہے۔ ایسے نہیں بے تکے نہیں لکھے ہوئے، ان کو کسی نے کسی خاص ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ ان پہ غور کریں نا، تو یہ جو پہلا 1 ہے نا، یہ 1 کا سکیئر ہے، 1 کا سکیئر 1۔ اگلا جو ہے نا وہ 2 کا سکیئر ہے، 2 کا سکیئر لیں گے 4۔ اگلا جو ہے وہ 3 کا سکیئر ہے، اور 3 کا سکیئر لیں گے تو 9۔ 4 کا سکیئر 16، 5 کا سکیئر 25، 6 کا 36۔ مطلب ہر حصے کا 1 سے شروع کریں، 1 2 3 4 5 6 7، ہر نمبر کا سکیئر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو آخر میں 484 لکھا ہوا ہے، یہ 484 لکھا ہوا ہے، یہ ہے 22 کا سکیئر۔ 22 کا سکیئر لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 484۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 سے لے کر 22 تک لگاتار جتنے بھی ہندسے ہیں نا، یہ ہر ہندسے کا مربع لکھا ہوا ہے، ہر ہندسے کا سکیئر لکھا ہوا ہے۔ تو اب 1 سے لے کر 22 تک میں آپ کو اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں ترکیب سیٹ ساز میں تو اس طریقے سے لکھیں گے، x جبکہ x رکن ہے n کا، n فار نیچرل نمبر یعنی قدرتی اعداد، 1 2 3 4 5، یعنی ہم نیچے والے حصے کی بات نہیں کر رہے، سوری اسی کی بات کر رہے ہیں۔ 1 کی طاقت 2 ہے، 2 کی طاقت 2 ہے، 3 کی طاقت 2 ہے، یہ 1 2 3 4 5 یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے نیچرل نمبر ہیں، قدرتی اعداد ہیں۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں ادھر، ہم کہہ دیتے ہیں کہ x رکن ہے کس کا؟ n کا، اور سوری تو اس کو ترکیب سیٹ ساز میں لکھنے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں، x جبکہ x کون ہے؟ اس کے اندر جو بھی رکن ہے نا، ہر رکن سکیئر ہے کسی نہ کسی نمبر کا۔ یعنی میں لکھ دیتا ہوں کہ x جبکہ x برابر ہے کس چیز کے؟ n کا سکیئر۔ x کس کے برابر ہے؟ n کا سکیئر۔ اب n کون ہے؟ n کی جگہ پہ 1 بھی ہو سکتا ہے، n کی جگہ پہ 2 بھی ہو سکتا ہے، n کی جگہ پہ 3 بھی ہو سکتا ہے، مطلب کوئی بھی ہندسہ ہو سکتا ہے۔ کتنے تک؟ 22 تک۔ تو x جبکہ x برابر ہے n سکیئر کے، اور n کون ہے؟ n کی آگے اس نے وضاحت کر دی کہ n رکن ہے، ادھر لکھ دیتے ہیں، اس میں n رکن ہے n کا نیچرل نمبر کا، یعنی قدرتی اعداد ہیں سارے، 1 2 3 4 5۔ اور شرط کیا ہے کہ n جو ہے وہ چھوٹا ہے یا برابر ہے 22 کے، یعنی 22 تک جائے گا یا 22 سے چھوٹے ہندسے جو ہوں گے وہ سارے ہوں گے 1 2 3 4 5 22 تک جتنی بھی ہندسے ہیں ان سب کا سکیئر لے کے اس سیٹ کے اندر آ گیا۔ تو یہ جو بات لکھی ہوئی اور یہ جو بات لکھی ہوئی ایک ہی بات ہے، یہ ہے اندراجی طریقہ، اور یہ ہو گیا ترکیب سیٹ ساز کا طریقہ۔ تو اس طریقے میں اس کو ہم نے ترکیب سیٹ ساز میں لکھ دیا۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں دیکھیں تو یہ ہے 2 4 8
16। ये भी एक खास किस्म का पैटर्न दिया गया, अगर आप इस पे गौर करें ना। ये पहला है 2 की ताकत 1, 2 की ताकत 1 लेंगे तो 2 बनेगा, फिर है 2 की ताकत 2 लेंगे तो 4 बनेगा, फिर है 2 की ताकत 3 ये लेंगे तो 8 बन जाएगा, फिर 2 की ताकत 4 ये बन जाएगा 16। इसी तरीके से चलते जाए चलते जाए चलते जाए, ये मेरे ख्याल में बनेगा 2 की ताकत एक 256 की दर्ज कर लेते, 5 6 7 8 2 की ताकत 4 और ये चलते जाए तो ये जो 256 है ये है 2 की ताकत 8। इस तरीके से 2 की ताकत 8 लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 256, यानी ये 2 की ताकत आ रहे सारे 2 की ताकत। अब ये 2 की ताकत कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 है, ये सारे कौन है? ये नेचुरल नंबर है, सारे कुदरती आदाद है, और 1 से शुरू होकर कितने तक जा रहे हैं? 8 तक जा रहे हैं। तो इसको हम तरकीब सेट साज में ऐसे लिखेंगे कि इस सेट में x आएगा जबकि x बराबर होगा किस चीज के? x बराबर होगा 2 की ताकत n, 2 की ताकत n, यानी n ये इसकी ताकत है। अब n कौन है? नीचे वाला नंबर चेंज नहीं होगा, 2 है, 2 ही रहेगा, उसको हमने लिख दिया 2, ठीक है ना। ऊपर वाले में देखें तो इसमें ताकत तब्दील नहीं, ताकत सब की 2 थी, लेकिन नीचे वाले नंबर जो थे वो तब्दील हो रहे थे। हमने नीचे n लिखा, ऊपर हमने 2 लिख दिया। इधर क्या है? नीचे 2 है और 2 की ताकत जो है वो तब्दील हो रही है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 5 6, और इसके साथ हम लिख देते कि n है कौन? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n रुकन है किसका? n का, कुदरती आदाद का, और n जो है वो छोटा है या बराबर है 8 के, यानी 8 तक जाएगा, उसमें 8 खुद भी शामिल होगा क्योंकि हमने नीचे लिख दिया छोटा है या बराबर है। तो ये आ गया जी तरकीब सेट साज। उसके बाद इस तीसरे सवाल में आ जाए। इस सवाल में कौन कौन से हैं? 0 है, जमा मनफी का 1 है, जमा मनफी का 2 है, जमा मनफी 3 4 5 चलते जाएंगे जमा मनफी 1000 तक। अब देखें, इसको हमने कल देखा था 0 इंटीजर यानी सही आदाद, तो ये 0 होता है दरमियान में, इधर आपके पास जमा 1 2 3 4 5 ऐसे, ये जमा के सारे, और इधर चलें तो ये आपके पास सारे होते मनफी 1 मनफी 2 मनफी 3 मनफी 4 मनफी 5, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। इधर चलें तो कितने तक आना है जी? मनफी 1000 तक, और इधर चलें तो जाना है जी कितने तक? जमा 1000 तक, यानी मनफी 1000 से लेकर जमा 1000 तक ये दरमियान वाले सारे सही आदाद इसके अंदर आए हुए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको इस तरीके से लिखेंगे x जबकि x रुकन है z का, यानी सारे सही आदाद है। और शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये मनफी 1000 से शुरू होंगे, यानी मनफी 1000 से बड़ा होगा x, मनफी 1000 से बड़ा होगा x, यानी मनफी 1000 छोटा होगा x से, मनफी 1000 से बड़ा होगा x, और x छोटा होगा जमा 1000 से, छोटा या बराबर, सॉरी ये मनफी 1000 खुद भी शामिल है और जमा का 1000 भी शामिल है। तो ये आ जाएगा जी मनफी 1000 से लेकर जमा के 1000 तक दरमियान में जितने भी इनसे हैं वो सारे आ जाएंगे 0 इंटीजर में इस सेट के अंदर। तो ये हमने लिख दिया जी तरकीब सेट साज कर दी। उसके बाद चलें जी चौथी जुज के अंदर, ये लिखें तो देखें 6 12 18 चलते जाए तो 120 तक। गौर करें तो ये तो लिखा हुआ 6 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा कैसे? 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24, इस तरीके से 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30, और ये पहाड़ा चलता जाएगा और आखिर में लिखा हुआ है 6 20। 6 को 20 से जरा दें, 6 20 120 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको अब गौर करें तो ये तो 6 का पहाड़ा लिखो। अब आप इस पैटर्न पे गौर करें, ये 6 आ रहा है सबके साथ, 6 6 6 6 6 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पहाड़ा कैसे पढ़ रहे हैं? 6 1 6 6 2 12 6 3 18 1 2 3, यानी ये कुदरती आदाद साथ लेके चल रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x जबकि x बराबर है 6n के, 6n के, यानी 6 के साथ n लिख दें। अब ये n को हमने वजाहत देनी कि n क्या है, n लिख दिया। n कौन है? ये सारे कुदरती आदाद 1 2 3 4 5 कितने तक? 20 तक। और n कौन है? रुकन है किसका? कुदरती आदाद का, और n छोटा है या बराबर है 20, इस तरीके से, यानी 20 तक जाएगा।
अच्छा, इसी को मैं थोड़ा रफ अमल में ये भी आपको लिख दूं कि वहां पे किताब वाले पे आप गौर करें, किताब पे जो जवाब लिखे इस सवाल का देखें, या इसका देखें, या इसका देखें, तो इसकी मैं इसी में बयान कर देता हूँ कि वहां पे ये लिखा हुआ है कि एक छोटा है या बराबर है n के, और n छोटा है या बराबर है 20 की, ये लिखा। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहते हैं कि ये जो n है ना, ये एक या एक से बड़ा है, एक से बड़े सारे, और शुरू कहां से होंगे, एक से, तो जाएंगे कहां तक, 20 तक, या 20 के बराबर 20 भी होगा, 20 से छोटे भी सारे होंगे। तो इस तरीके से लिखें या ना लिखें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमने लिख दिया कि n कौन है, रुकन है n का, और फिर आगे देखिए तो n जो होता है नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद, वो शुरू ही 1 से होते हैं। ये हमें बयान करने की जरूरत नहीं है। इजाफी है लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो आपका कोई सवाल गलत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 20 से छोटे कुदरती आदाद जब आप वापस आएंगे तो सारे शुरू ही 1 से होंगे, तो शुरू 1 से होते हैं सारे कुदरती आदाद, 1 से होके 20 तक इसमें हमने लिखने का हमने लिख दिया 20 से छोटे या 20 के बराबर, इन 20 भी आ जाएगा, उससे छोटे भी सारे आ जाएंगे। इस तरीके से तो ये आपके पास आ गया तरकीब सेट साज का तरीका। इस सवाल में है जी, 5वें सवाल को और से देखो। 100 है, 102 है, 104 है, चलते चलते 400 तक पहुंच गए। अब गौर करें ना, ये शुरू हो रहा है कहां से, 100 से, फिर क्या हुआ, 100 में इजाफा कर दिया गया, जमा कर दिया गया किसको, 2 को, फिर क्या हुआ, 100 में जमा कर दिया गया 4 को, फिर 100 में जमा कर दिया गया, 100 में हमने जमा किया 6। इस तरीके से चलते 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 ये आखिर 100 में जमा करेगा 300, यानी ये 400 तक जाएंगे। ये पैटर्न बन रहा है, पहला रुकन 100 है, दूसरा 102 है, तीसरा 104 है, तीसरा चौथा 106 होगा, 108 होगा, 110, 112, 114 चलते जाएंगे, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 400 तक, ऐसे जाना है 400 तक। यानी पहला रुकन तो 100 है ना, इसमें 2 का इजाफा कर रहे हैं, 2 का इजाफा कर रहे हैं, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं आप, इसमें किसी चीज का इजाफा नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 जमा 0, इसमें किसी चीज का इजाफा नहीं किया गया, 100 जमा 0 हम लिख सकते हैं, 100 जमा 2 लिख दिया, 100 जमा 4। तो आप गौर करें तो ये तो सारा 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 चलते जाएंगे और 300 तक जाएंगे। तो इसका मतलब है 2, अब 2 का पहाड़ा देखें ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 और 2 4 8 और 2 150 तक पढ़ेंगे। 2 को 150 दफा पढ़े तो ये आपके पास 300 बनेगा, यानी 2 का पहाड़ा आगे पढ़ रहे हैं और पीछे साथ हम 100 जमा करते जा रहे हैं, और अगर आगे 100 के बाद क्या लिखते जा रहे हैं, 2 का पहाड़ा। तो पहला फिर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो पहला अगर देखें तो पहले में हम जमा करें किस चीज को, 0 को, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 के साथ जमा हो रहे, इसको 2 का पहाड़ा पढ़े 0 दफा, 2 0 0 2 0 0। अब इसका पैटर्न देखिए, पैटर्न क्या बन रहा है कि 100 के अंदर हम किस चीज को जमा करेंगे, 100 के अंदर हम जमा करेंगे 2, और 2 के साथ कोई ना कोई हिंसा जरा होगा, वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितने तक, 150 तक कोई भी हो सकता है, लेकिन शुरू कहां से होगा, 0 से। इसका मतलब इस चीज को हम, ये 2 चीजें तो कांस्टेंट रहेंगी आखिर तक, इनमें तब्दीली नहीं आएगी, ये वाला हिस्सा तब्दील होता रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तरकीब सेट साज में ऐसे लिखते हैं कि x जबकि x बराबर है 100 जमा 2n, ये n तब्दील हो रहा है, 100 भी तब्दील नहीं होगा, 2 भी तब्दील नहीं होगा, ये दोनों इसी तरीके से ही रहेंगे, n तब्दील होता रहेगा। और n है कौन, आप गौर करें, अब देखिए तो n 1 से शुरू नहीं हो रहा, n को हम 0 से शुरू कर रहे हैं, और कुदरती आदाद में 0 नहीं होता, 0 होता है मुकम्मल आदाद में। तो हम लिखेंगे n रुकन है w का, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, यानी मुकम्मल आदाद में से आएगा, और शुरू 0 से होते मुकम्मल आदाद, तो 0 से कितने तक जाएगा, और n छोटा है या बराबर है 150, इतने तक जाएगा। ये लिखेगा जी तरकीब सेट साज का तरीका। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जुज नंबर 6 में। तो हमारे सवाल की जुज नंबर 6, इसमें आप गौर करें तो ये लिखा हुआ है 1 3 9 27 81 100 जारी, जितने तक मर्जी है चले जाए। थोड़ा गौर करें, इस 1 मिनट को, 1 मिनट के लिए इस 1 को भूल जाए तो आगे तो 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 3 का पहाड़ा नहीं, 3 की ताकत। आप देखें ना, 3 की ताकत 1, 3 की ताकत 2,
3 की ताकत 3, 3 की ताकत 4, इन 3 की ताकत 1 होगा तो 3, 3 की ताकत 2 करेंगे तो 9, 3 की ताकत 3 करेंगे तो 27, 3 की ताकत 4 करेंगे तो 81, चलते जाएं जितने तक मर्जी लेके चले जाएं। तो ऊपर गौर करें 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जितने तक भी चले जाएं। अब ये 1 कहां से आया? तो अगर आप इधर लिख लें कि 3 की ताकत 0, यानी किसी भी चीज की जब ताकत 0 होती है तो उसका जवाब हमेशा 1 आता है। किसी भी चीज की जब ताकत 0 ली जाती है तो उसका जवाब हमेशा 1 आएगा। तो हम इससे लिख सकते हैं कि ये भी 3 की ताकत है, लेकिन 3 की ताकत कौन है? 0 है। तो हमारा सवाल कुछ इस तरीके से आएगा, इसका जवाब x जबकि x बराबर है 3 की ताकत n, यानी 3 तो तब्दील नहीं हो रहा, ताकत इसकी तब्दील हो रही है। ताकत कहां से शुरू होगी? 0 से शुरू होगी और जितने तक मर्जी लेके चले जाए। तो 3 की ताकत n, जबकि n बिलोंग्स टू, या n रुकन है किसका? W का, मुकम्मल आदाद है। 0 से शुरू होंगे, 1, 2, 3, 4 जितने तक मर्जी लेके चले जाए। ये इसके आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया, ये लिखा गया जी तरकीब सेट साज में। उसके बाद आ जाए जी जुज नंबर 7 में। इसमें गौर करें तो ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। कल हमने सवाल नंबर 2 जब कर रहे थे अंदराजी को तरकीब सेट साज में, तरकीब सेट साज को अंदराजी में लिख रहे थे, उसमें हमने एक सवाल पढ़ा था कि मेरे ख्याल में किसी चीज का वो था कि उस 128 था गालिबन, 128 का मकसूम इलह, यानी उस पर पूरे पूरे तकसीम होने वाले पहाड़। तो इस पे गौर करें तो ये सारे वो हिंद से लिखे हुए, वो पहाड़ लिखे हुए जो 100 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। 1 का पहाड़ा भी 100 पे जाता है, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, 20 का, 25, 50, 100, ये सारे पहाड़े 100 पे पूरे पूरे तकसीम होते हैं। हम लिखेंगे x, जबकि x कौन है? x 100 का मकसूम इलह है। ये आ गया जी इसका अंदराजी तरीका में जवाब, यानी x कौन है? 100 पे तकसीम होने वाला कोई नंबर है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद 8वीं जुज देख लें, 5, 10, 15 और ये इसी तरीके 5, 1, 5, 5, 2, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20। ये तो 5 का पहाड़ा लिखा हुआ कितने तक? 100 तक, यानी 5, 1, 5, 5, 2, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20, 5, 5, 25 और चलते जाएंगे। 5 को 20 दफा जरब देंगे, 20, 5, 100 हो जाएगा। जैसे अभी ऊपर हमने ये 6 का पहाड़ा लिखा था, ये सवाल कौन था साल पर? ये 6 का पहाड़ा लिखा हुआ था, ये 5 का पहाड़ा लिखा हुआ है, वो भी 20 तक जाता था, ये भी 20 तक हम पढ़ेंगे। सेम उसी तरीके से लिख दें x, जबकि x बराबर है 5n, यानी हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। और n कौन है? रुकन है कुदरती आदाद का, और n छोटा है या बराबर है 20 तक जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा तरकीब सेट साज का तरीका। उसके बाद 9वीं और आखिरी जुज है 1000 और -100 के दरमियान तमाम सही आदाद का सेट। अब ये देखें, बाकी जितने भी सारे सेट लिखे थे वो लिखे थे अंदराजी तरीके में, उनको हमने तरकीब सेट साज में तब्दील कर दी। ये अंदराजी में नहीं लिखा, ये बयानिया में लिखा है, इसको भी हमने तब्दील करने के इसमें तरकीब सेट साज में। कैसे करेंगे? जैसे इसको किया था, ये भी सही आदाद थे, लेकिन ये -1000 से लेकर जमा आदाद तक थे, ये -100 से लेकर जमा आदाद तक है। कोई इशू नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। x, जबकि x रुकन है z का, और -100 से बड़ा होगा x और छोटा होगा किससे? 1000 से छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया जी आपका सवाल नंबर 1, मशक नंबर 3.1 का सवाल नंबर 1 कि दर्जन सेटों को तरकीब सेट साज में लिख। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।